Hello class 6, welcome back to your computer online classes. I'm Rohit Singh and today we will discuss about QBasic. In our last class we have studied about what is QBasic, the editor of QBasic, and about character sets and variables. Today we will move further into your chapter, and my topic of discussion today is operators. Okay, what are operators and type of operators? So what is the need of operators in QBasic or any other programming language? Okay, so basically in your programming you sometime come across a situation where you need to perform some operations, perform some calculations and manipulation on your data. So to perform any calculation, manipulation on data, we need operators. Suppose if I add two numbers, I will use plus operator. Okay. If I need to compare two numbers, I will use a operator. If I need to shift my data to left or right, okay, I will use some ऑपरेटर्स. ठीक है, तो ऑपरेटर्स का काम क्या हुआ? बेसिकली दे आर यूज्ड टू परफॉर्म सम कैलकुलेशंस और मैनिपुलेशंस. ओके, सो इन QBasic I have three type of operators. My first operators is arithmetic operator. Okay, so these operators are same as you use in maths. These operators are basically perform some mathematical operation, mathematical calculation on data. Okay, we will discuss some operations and some operators. Okay, so my first operator is addition or plus operator. Okay, this is called addition. My operation is called addition and my operator is called plus operator. Okay, so if you need to add two numbers in QBasic, okay, suppose you have an operand A that is 2 and you have second operand B that is 2. ठीक है, A and B are operands, इनको हम कहते हैं operands. ठीक है, जिन पर कैलकुलेशन परफॉर्म किया जाता है वो कहलाते हैं ऑपरेंड. ओके, और जिनसे ऑपरेशन किया जाता है वो कहलाते हैं ऑपरेटर. देयर आर टू टर्म्स, ऑपरेंड जिन पर ऑपरेशन होता है और जो करता है दैट इज ऑपरेटर. ओके, सो इफ आई नीड टू ऐड माय टू नंबर्स आई विल ऐड एज a plus b. ओके, आई विल ऐड एज a plus b. अब a plus b मेरा क्या हो चुका होगा? 2 plus 2 4. एंड हमें पता है कि हमें कंप्यूटर में डेटा अपना सेव करना पड़ता है. जैसे मैंने 2 को A में सेव किया और B को भी 2 को B में सेव किया, ऐसे मुझे अपना रिजल्ट जो है A प्लस B का ये भी किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा. सो आई विल राइट एज C इक्वल्स टू A प्लस B. ओके, सो दिस इज माई एडिशन ऑपरेटर विच विल परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर्स. और मुझे यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा? माई आउटपुट विल बी 4. ओके, अभी हम सिर्फ ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पर मैंने कोई भी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स नहीं लिखा है. सपोज अगर आपको यही प्रोग्राम QBasic में लिखना होता टू ऐड टू नंबर्स, तो आप कैसे लिख पाते हैं इसको? मैं आपको बस एक बार दिखाने के लिए बता दे रहा हूँ. प्रोग्रामिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे. यू राइट लेट A इक्वल्स टू 2, then you write let b equals to 2, then you write let c equals to a plus b, then you write print c. Okay, so these are the basically a program of QBasic which add two numbers and print your output. Output आपको क्या मिलता? Output will be 4. Okay, तो पहले हम फिलहाल अभी हम प्रोग्रामिंग डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम ऑपरेटर से डिस्कस करेंगे. सो टू ऑपरेटर्स, टू ऑपरेंड्स को हम ऐड कैसे करेंगे? बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर. ओके, नाउ माय second operation is
My second operation is subtraction and symbol is minus. Very simple. आप लोगों को पता भी है, जो साइन मैथ में होता है वही साइन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सपोज आई हैव an operand A that is 3, I have an operand B that is 2 and I need to subtract these operands. So I will do like A minus B. So my output will be A minus B means 3 minus 2, that is 1. Okay. My third operator is multiplication. Okay. In QBasic you will not use this. In QBasic you will use asterisk. Okay, we call this as asterisk. आप asterisk use करोगे to do multiply. Suppose I have A as 3, I have B as 2 and I need to multiply these numbers. So I will write A asterisk 2, sorry, A asterisk B and my output will be 3 to the 6. Okay, simple है। My next operation is division. अगर आपको division perform करना है तो आप कैसे करने वाले हैं? Okay. So to perform division, I will use a symbol that is called slash. ठीक है? आप slash का use करेंगे to perform division. Same if I have A as 4, I have B as 2, and I need to perform division. So I will write as C equals to A slash B. And मुझे आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ से? My output will be 2. Okay. And my last operation is exponential. Exponent. Okay. Exponent means power. Okay. Like 2 power 2 is 4. 2 power 3 is 8. Okay. अब exponent के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? To do the exponent in QBasic, I have two symbols. I can use caret, okay, and or I can use double asterisk. ठीक है, आप दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं. You can use caret or you can use double asterisk. Okay, so if I have as A as 2 and if I have B as 3. And I need to perform exponent on A. So what I will do? I will write A caret B और क्या लिख सकता हूँ मैं? A double asterisk B. Okay? इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है 2 power 3. That is 2 multiply 2 multiply 2. And my output will be 2 to the 4 to the 8. Okay? So these are the arithmetical operators in your QBasic. Now we will move further and discuss second type of operator. So my second type of operators are relational operators. Okay, and why they are used? Relational operators are basically used to find the relation between two numbers. Okay, if I have as I operand A and a second operand B, and if I need to find the relation between these operand, like A is greater than B or A is less than B or A is not equals to B, A is equals to B. So for these type of relation I need to use relational operator. Okay, we will discuss all these relational operator one by one. So my first operator is equal to operator. Okay, and the symbol is this. Okay, suppose I have an operand that is 3 and I have an operand like B equals to 2. And if I need to compare these two operands, so I will write A equals to B, and before this I will write if. Okay, I will write if
इफ इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप अभी इफ समझ लो. वी विल राइट इफ टू यूज रिलेशनल ऑपरेटर. ओके, तो आई विल राइट इफ ए इक्वल्स टू बी. तो क्या ए बी के बराबर है? नहीं. तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? व्हाट विल बी माय आउटपुट? मेरा प्रोग्राम मुझे क्या बताएगा? माय प्रोग्राम विल से फॉल्स. ओके, एंड फॉल्स हमारा प्रोग्रामिंग में शो होता है जीरो से. ओके, जीरो इज फॉर फॉल्स एंड वन इज फॉर ट्रू. तो दिस a is not equals to b, so my output will be zero. Okay, my second operation is less than, and symbol you know, same as maths, this symbol. So if I have a as 2 and b as 1, and if I need to check that if a is less than 1, so I will write if a is less than 1. आउटपुट क्या होगा? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, a is not equals to 1, sorry, a is not less than to b, so my output will be false. यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? false. That means 0. Okay, थर्ड डिस्कस करते हैं. My third type of operator is greater than. अब इसका सिंबल क्या होने वाला है? जैसे मैथ में होता है सेम सिंबल. सो इफ आई हैव a as 5 and b as 2, and if I need to check if a is greater than b, so I will write if a is greater than b. Now my condition is true. a यहाँ मेरा b से बड़ा है, so my output will be true. और ट्रू केस में मुझे क्या मिलने वाला है? 1. Okay. Now my fourth operator is less than or equal. Okay, less than or equal to. So suppose if I have a as 5, same लेते हैं, and b as 2, and if I need to check if a is less than or equal to 2. अब सिंबल क्या है इसका? यहाँ पर लिख देते हैं लेस देन और इक्वल टू. आप दोनों एक साथ यूज करोगे, ठीक है. तो आई विल राइट इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी. दोनों सिंबल एक साथ आप लिखोगे 1 by 1. सो क्या 5 2 से लेस है? नहीं, बिल्कुल लेस नहीं है. और क्या 5 2 के इक्वल है? ये बिल्कुल नहीं है. तो आउटपुट क्या मिल जाएगा? आपको समझ में आ रहा है? आउटपुट आपको क्या मिलेगा? फॉल्स, मीन्स 0. ओके, अगला देखें. बहुत सिंपल चल रहा है अभी तो, जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं वैसे ही है सब चीजें. माय नेक्स्ट ऑपरेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. ठीक है, इससे पहले हमने देखा था लेस देन और इक्वल टू. अब क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन का सिंबल और इक्वल टू का सिंबल. एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज a is 5, सेम b is 2. नाउ आई विल राइट इफ a is greater than equal to b. क्या ऐसा है? हाँ भाई, 5 तो 2 से बड़ा है. तो आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा? यस, that means my output will be 1. Okay, now my last operation is not equal to. ओके, मैथ्स में कैसे लिखते हैं नॉट इक्वल टू? इस तरह से. मगर यहाँ तो कीवर्ड में था वो सिंबल होता नहीं. यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? वी विल राइट लाइक दिस. लेस देन, ग्रेटर देन, दोनों का सिंबल एक साथ यूज करेंगे आप. ठीक है. सपोज आई हैव a as 5 and b as 2, and I need to check if a is not equals to b. क्या a b के बराबर नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, ए और बी बराबर नहीं है. तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू. दैट इज 1. ओके, सो दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने भी डिस्कस किए. इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू. सो आवर थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर आर लॉजिकल ऑपरेटर्स. ठीक है,
these are logical operators. सो व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स? ठीक है, अभी रिलेशन ऑपरेटर में हमने क्या देखा? रिलेशन ऑपरेटर आर बेसिकली कंपेयरिंग टू वैल्यूज. ठीक है, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बेसिकली यूज्ड टू combine two expression. Okay, they are used to combine two expression and to produce one single output or to one single value like a b c. ठीक है, अब मुझे इनमें चेक करना है. ठीक है, ए बी सी में मुझे कंपैरिजन करना है. तो अगर मैं रिलेशन ऑपरेटर यूज करता हूं तो मैं ए और बी को चेक कर पाऊंगा एक बार में, उसके बाद ही मैं ए और सी को चेक कर पाऊंगा. ठीक है, बट इफ आई एम यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, सो इन सिंगल लाइन, इन सिंगल को आई कैन कंपेयर ऑल दीज वैल्यूज. सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बेसिकली यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल एक्सप्रेशन एंड टू प्रोड्यूस सिंगल आउटपुट. ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं इनको देखते हैं. माय फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज एंड ऑपरेटर. ओके, अब एग्जांपल देखते हैं पहले. सपोज इफ पहले कहाँ ए की वैल्यू लेते हैं. ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 3. ओके, मेरे पास 3 वैल्यूज हैं. अब मैं क्या लिखूंगा? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी बी, एंड ए इज ग्रेटर देन सी. देखा आपने, मैं एक बार में ए को बी से भी चेक कर रहा हूं और एक ही बार में ए को सी से भी चेक कर पा रहा हूं. ठीक है, इनके बीच में मैंने कौन सा ऑपरेटर लगाया? एंड ऑपरेटर. ठीक है, अब ये करता क्या है एंड ऑपरेटर? फर्स्ट ये इसको चेक करेगा. ठीक है, ओके, सपोज इट कम्स ट्रू. ठीक है, एंड ये इसको चेक करेगा. सपोज इट कम्स ट्रू. अगर आपकी दोनों वैल्यू ट्रू आती हैं, ठीक है, तब आपका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू, दैट इज 1. अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू आती हैं, पहली वाली भी और बाद वाली भी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तब हमारा आउटपुट क्या आएगा? ट्रू. अगर इन दोनों में से एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाती है, दैट मीन्स 0 हो जाती है, तब मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा? फॉल्स. ओके, तो एंड ऑपरेटर जो है उसके लिए आपके दोनों एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए, तभी आपका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा. ओके, सो हियर यहाँ पर क्या चल रहा है? ये चेक कर रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, 5 इज ग्रेटर देन 2. करेक्ट है, यहां से मुझे क्या मिला? ट्रू. 5 इज ग्रेटर देन बी और 2 मतलब 1 मिला. अब यहां से क्या मिलेगा? एंड. ठीक है, नाउ ए इज ग्रेटर देन सी, 5 इज ग्रेटर देन 3. ऑब्वियसली बात है, यहां से भी क्या मिला मुझे? ट्रू, दैट मीन्स 1. तो मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है? मेरे प्रोग्राम का आउटपुट जो होगा दैट इज ट्रू, दैट मीन्स 1. ओके, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं एंड पे ही. सपोज आई हैव ए एज 2, बी एज 1 एंड सी एज 3. ठीक है, एंड ऑपरेटर ही यूज करते हैं. इफ आई राइट इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी. ओके, अब ये चेक करेगा पहले. ए इज ग्रेटर देन बी, 2 इज ग्रेटर देन 1. सही बात है, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? ट्रू, मतलब 1 मिल जाएगा. ए इज ग्रेटर देन सी, 2 इज ग्रेटर देन 3. नहीं, यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? फॉल्स. अब दोनों में से अगर मेरी एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरा आउटपुट क्या हो जाता है? आपको मैंने बताया था अभी, फॉल्स. यहाँ का मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 3 है, इसलिए मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स. ओके, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है? दोनों एक्सप्रेशन को चेक करता है. अगर दोनों एक्सप्रेशन सही होंगे तभी आपका आंसर जो है ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा. नाउ माय सेकंड ऑपरेटर इज और ऑपरेटर. ओके, नाउ भाई और ऑपरेटर क्या करता है? अगर आपके दोनों एक्सप्रेशन में से एक भी अगर ठीक
आपकी वैल्यू ट्रू है तो आपको आंसर वो यस कर देगा, आपका आंसर वो ट्रू कर देगा। इसी में देखते हैं, सपोज ए इज 2 लिया था हमने, बी हमने 1 लिया था एंड सी हमने 3 लिया था। अब अगर मैं और लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इफ आई राइट इफ ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी, अगर मैं और ऑपरेटर यूज करता हूँ, ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू मिलेगा, यस, बी इज ग्रेटर देन सी, यहाँ से क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। मतलब के बीच में क्या लगा हुआ है, और। अब और का मतलब क्या होता है, या। इन दोनों से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरा आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, ट्रू, दैट मीन्स 1, ठीक है। तो और क्या करता है, और के केस में अगर एक भी वैल्यू दोनों में से 1 आती है या 2 आती है तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ट्रू और 1, ठीक है। इतनी सी बात है, सिंपल सी। माई लास्ट ऑपरेटर इज नॉट ऑपरेटर, थर्ड ऑपरेटर इज नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर बेसिकली आपके रिजल्ट को उल्टा कर देता है। अगर मुझे मेरा आंसर फॉल्स आया है तो उसको ट्रू कर देगा, ट्रू क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। कैसे करता है, सपोज इफ आई हैव ए एज 2 एंड बी एज 3, ओके, एंड इफ आई राइट नॉट ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब क्या यहां से क्या मिलेगा मुझे, ए ग्रेटर देन बी, क्या मिलना चाहिए, ए बी से तो बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल अगर मैं देखूं, अगर मैं देखता हूं ए ग्रेटर देन बी तो मुझे क्या मिलना चाहिए, नॉर्मली फॉल्स, क्योंकि ए जो है बी से छोटा है। बट अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसके आगे नॉट ए इज ग्रेटर देन बी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा आउटपुट ट्रू, ओके। क्योंकि नॉट क्या करता है, नॉट आपके रिजल्ट को अपोजिट कर देता है, उल्टा कर देता है, ठीक है। सपोज मैं लेता हूँ ए एज 5 एंड बी एज 2 और मैं लिखता हूँ नॉट ए इज ग्रेटर देन बी। अब ए इज ग्रेटर देन बी क्या है, ट्रू है। अब ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो मुझे अपने आउटपुट में क्या मिल जाएगा, फॉल्स, दैट मीन्स 0, ओके। सो दैट इज ऑल। हमने आज काफ़ी कुछ नई चीज़ें पढ़ ली, काफ़ी सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए। आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे इतना सारा नया कुछ देख के।